Assalamu alaikum and welcome back. Check this out. Anyway, ये तो साइड का शोगल है. हम शुरू करते हैं अपना रिव्यू. And today the review that we are going to do is of Vivo Y91. Vivo Y91 is comparable. It's not exactly the same, but it is comparable to the Oppo A5s that we reviewed a few days back. हमने Oppo A5s का रिव्यू किया था कुछ दिन पहले. It has got a battery of 4030 mAh, almost similar. Rear camera is 13 megapixel plus 2 megapixel, similar again. Hello full view display 6.22 inches, quite similar. So that necessarily means कि ये फ़ोन भी एक बजट फ़ोन है. Around 26-27,000 की प्राइस रेंज में ये फ़ोन अवेलेबल है. Depending upon from where you are buying it, the price can be a little up or maybe a little down. So as per usual हमारा मोबाइल फ़ोन का जो रिव्यू होगा that will be based on 4 things. 4 चीज़ें जो कि एक फ़ोन में मैं हमेशा देखना पसंद करता हूँ. उसका डिस्प्ले, battery capacity and battery performance, OS performance, and finally the cameras. But as usual, just before starting the review, let's have a little bit of overview of what the phone has. On top you have a teardrop notch. teardrop notch के बिल्कुल ऊपर पतला सा आपके स्पीकर की ग्रिल है. बॉटम में आपके दूसरे स्पीकर की ग्रिल है, आपका हेडफोन जैक है, माइक्रोफोन है और उसके अलावा USB माइक्रो पोर्ट है for charging. So no USB-C. At the back of the phone, you have the fingerprint scanner. You have the 2 cameras, that is 13 megapixel and 2 megapixel. On right side of the phone, you have volume rocker and the power button. Phone हमने जो review किया है, that is of 64 GB storage and 3 GB of memory. यानी कि RAM उसकी 3 GB थी, storage उसकी 64 GB थी. ये 32 GB में भी available है and I don't know 128 GB में है या नहीं है. In addition to this 64 GB, आप SIM card की tray को निकाल के इसमें आप मजीद memory card डाल के Shut up! That was Siri. जब इससे काम होता है तो उस वक्त बोलता नहीं, और अब जब मुझे काम है ही नहीं, मैंने Hey Siri कहा भी नहीं, फिर चल पड़ा है. Hey Siri, what is the temperature in Lahore now? It's about 29 degrees outside. Okay Siri, now keep quiet and don't disturb me during the video. बंद हो गई. So anyway, in addition to that 64 GB आप SIM कार्ड ट्रे निकालकर इसमें up to 256 GB का कार्ड डालकर स्टोरेज को मजीद बढ़ा सकते हैं. So the display on this phone is IPS display, 6.22 inches, resolution is 1520 by 720p. तो again ये 720p और Full HD के दरमियान की चीज़ है, just like Oppo A5s. So it's a bit of confusing resolution, but it performs well. I mean, if you see the YouTube videos, वो 720p में चलेगी. चाहे तो आप उनको 1080p में भी चला सकते हैं, but it's not going to make much of a difference. Normal usage में I can easily swipe, I can go up, I can go down. According to its price, it's okay. Just like Oppo A5s, one potential issue. अगर आप ब्राइट सनलाइट में अपने फ़ोन को यूज़ करना चाहेंगे, यू विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी. इस वक्त आपको लाइट की जो रिफ्लेक्शन इसके ऊपर नजर आ रही है, दैट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द ब्राइट सनलाइट. नहीं नजर आ रहा ना? यही चीज़ आपको थोड़ी सी तंग करती है व्हेन यू आर इन ब्राइट सनलाइट. अदरवाइज द डिस्प्ले इज फाइन, द डिस्प्ले इज गुड. According to its price, you should not be complaining. Now talking about the battery life, the battery in this phone is gigantic. It is 4030 milliamps. That is huge. और डिस्प्ले भी इतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन का नहीं है, तो इट शुड बी परफॉर्मिंग वेल एंड इट डज. आपको एक दिन का बैटरी टाइम आराम से मिल जाता है. इफ़ यू आर अ पावर यूजर, यू वांट टू वॉच यूट्यूब वीडियोस, यू वांट टू प्ले गेम्स, यू वांट टू डाउनलोड म्यूजिक, यू वांट टू एडिट अ कपल ऑफ फोटो, वेल आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, एडिटिंग फोटोज ऑन दिस फोन. लेकिन ये सब काम करने के बाद भी आपको 5 या 6 घंटे की कंटिन्यूस यूजेज की मैं बात कर रहा हूँ, आपको 5 या 6 घंटे कंटिन्यूस यूजेज विद ऑल ऑफ दीज हैवी एप्स मिल जाएगी इंशाल्लाह आराम से. रात को जब आप सोएंगे ना, तो आपको तभी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, एंड आई बिलीव यू शुड बी लेफ्ट विद अराउंड 20-25% ऑफ द बैटरी विद द नॉर्मल यूसेज. बट डिस्पाइट हैविंग सच अ बैटरी, ओप्पो को चाहिए था कि वो एक अच्छा चार्जर भी दे देते, एंड बाय अच्छा आई मीन फास्ट चार्जर. द चार्जर दैट इज प्रोवाइडेड इन द बॉक्स इज 5 amperes only. No good. It's a slow charger, so you have to exercise a little bit of patience with it. Furthermore, इस फोन के अंदर Vivo ने हेडफोन जैक तो दे दिया है, but there are no headphones in the box. If you want to use the headphones, you have to buy them separately. या पुराने पड़े तो वो इस्तेमाल कर लें. बॉक्स के अंदर बहरहाल नहीं है. Third thing that we are going to talk about now is the performance of the operating system or the OS. Vivo is also using a small skin on top of the Android OS, just like every other manufacturer. The good thing is that skin is minimal. वो आपके एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है.
सैमसंग की जैसे स्किन है ना, वो आपके एंड्रॉइड ओएस के ऊपर काफी ज्यादा हैवी होती थी। सैमसंग ने इतनी ज्यादा पहले चीजें किसी जमाने में डाली हुई थी कि फोन स्टटर और जिटर बहुत ज्यादा करता था। अब शायद मैन्युफैक्चरर्स को समझ आ गई है कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके फोन की परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है और आपके फोन उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाता जितना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो फोन कर पाएगा। सो इस फोन में जो वीवो ने अपनी स्किन डाली हुई है एंड्रॉइड के ऊपर, दैट इज मिनिमल, विच इज अ वेरी गुड थिंग। Hence, there are no stutters and no jitters except if you are playing power games or if you are using the powerful apps. There are going to be stutters and jitters. What is the reason for that? Well, the reason for that is the Snapdragon 439 प्रोसेसर जो कि इस फोन के अंदर इस्तेमाल हुआ है। Android Oreo है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड Snapdragon 439 is good for this price range. I mean, ज़ाहिर बात है आपका फोन ये सस्ता इसीलिए है कि इसमें Snapdragon 439 यूज हुआ है। अगर लेटेस्ट यूज होगा तो खाली प्रोसेसर की जो कीमत है वो शायद इस फोन की पूरी कीमत के बराबर हो जाएगी। Snapdragon 439 is good. It is good for this phone. It is good for the display, but you should not use power hungry games on this phone. फर्दरमोर इसमें एड्रीनो का जीपीयू भी इस्तेमाल हुआ है जो कि आपकी ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। सो दैट इज वन थिंग जो कि Oppo A5s में नहीं थी लेकिन इसमें है। Otherwise, all the swipes are registered well, all the scrolls are registered well, wallpapers बड़े smoothly मेरे change हो रहे हैं इस वक्त। The phone is not giving me any, bad feedback. That is a job well done, Vivo. क्योंकि कई मैन्युफैक्चरर्स शुरू में एक्साइटमेंट में कि दे वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन द मार्केट एंड दे वांट टू चाहते हैं कि अपनी स्किन इतनी भारी लगा दें कि जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल दें और उसका नतीजा ये निकलता है कि चीज़ें तो बहुत ज़्यादा डल जाती हैं, लेकिन 50 में से काम जो है सही तरीके से 8 या 9 ही करती हैं। एनीवे, दैट वाज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system is stable. It has not given me any problems as yet. We have been using this phone for the last maybe 1 month or so. And now the fourth point. Performance of the cameras is acceptable. I'm not going to say it is exceptional. I'm not going to say it is bad, but it is acceptable. मैंने rear कैमरा से फोटोज भी ली हैं, टेलीफोटो लेंस वाले कैमरा से फोटो भी ली हैं, and let's have a selfie as well. Well, the modes in this camera are killing me. मतलब मुझे नहीं पता ये प्रोफेशनल मोड क्या है। You see that it says professional and then it says panorama. Panorama तो obviously मुझे पता है कि क्या है। And then it is face beauty. And then okay, take photo. ठीक है जी, take photo. The photo has been clicked and if I see, ठीक है। बट इतनी ब्राइट लाइट्स मैंने अपने चेहरे पे डाली हुई, उसके बाद भी फेस मेरा ब्लरी है, ये मुझे समझ नहीं आई। लेट मी ट्राई वंस मोर, सॉरी। यस, इट इज़ बेटर दिस टाइम। हल्का सा ब्लर अभी भी आया है लेकिन इट्स मच बेटर। So the performance of the cameras is satisfactory. We have been making a few video calls here and there. It did not disappoint us. Photos में थोड़ा बहुत शेक आ जाता है, but portrait mode इसमें नहीं है। Oppo A5s में था, इसमें नहीं है। Now let's check the video recording capabilities of this phone. Interesting. ये मुझे options दे रहा है 1080p की, but it's not telling me कि frames कितने हैं। पर मेरा ख्याल है कि शायद 30 फ्रेम्स पर सेकंड होंगे। आप चाहें तो थर्ड पार्टी कैमरा भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल का अपना कैमरा है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने कैनी कैमरा भी डाउनलोड किया हुआ है। सो द कैमरा डिपार्टमेंट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। नाउ कमिंग टू द फाइनल थिंग एंड दैट इज द बिल्ड क्वालिटी। हाउ इज द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द फोन? इफ आई रिमूव दिस कवर, दे कॉल इट स्टारी ब्लैक, क्योंकि इसमें जो आपको हल्का सा स्प्रिंकल नजर आता है at the back of the phone. 1/3 of the phone, I must say, at the back is not exactly black. It is dark bluish or something. और पूरे फोन के बैक के अंदर जो है वो स्पार्कल्स से नजर आ रहे होते हैं। That is why probably they call it starry black. क्योंकि ये जो छोटी छोटी सी चीजें शाइन कर रही हैं, शायद इनको उन्होंने स्टार से तशबीह दी है। शायराना माहौल है भाई। और जस्ट लाइक Oppo A5s जिसमें टॉप पे बेजल बिल्कुल थिन था, बॉटम पे बेजल चौड़ा था, इसमें भी एग्जैक्टली वैसे ही है। I mean, if you see in this shot, तो आपको नीचे बेजल मोटा नजर आता है, ऊपर पतला नजर आता है, क्योंकि जो डिस्प्ले का बॉटम है, आपकी बैकलाइट स्ट्रिप, आपकी आईसीज और आपके सारे पिक्सल्स को कंट्रोल करने का निज़ाम लगा हुआ होता है। अगर आपने इस बार को नीचे खत्म करना है तो आपको ये डिस्प्ले ऊपर से लाके और नीचे उल्टा मोड़ना पड़ेगा। उल्टा मोड़ने के बाद उसके पीछे आप सारी स्ट्रिप्स और सारे कंट्रोल्स लगा सकें, which is a very very expensive process. That is why Apple's phones are expensive as well, by the way. You should not be complaining. I mean, 27,000 में this is an awesome phone. अब बारी आ गई जनाब के मैं आपको क्या रिकमेंड करूं, Oppo A5s या Vivo Y91. In my view, both of them have performed similar
एज ऑफ हियर। दोनों फोन्स कंटिन्यूसली यूज में हैं और मुझे दोनों की परफॉर्मेंस में कोई खास जमीन आसमान का फर्क नहीं लगा। बोथ आर कंपेरेबल। अब मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा? मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि उस दिन, उस वक्त, उस जगह और उस टाइम पे दोनों में से जो फोन आपको सस्ता लग रहा हो ले लें। आप इस चीज के चक्कर में मत पड़े कि वो ओप्पो का फोन है, ये वीवो का फोन है। फोन दोनों अच्छे हैं। दोनों में से उस दिन, उस जगह, उस मुकाम पर जो सबसे सस्ता मिल रहा हो, गो फॉर दैट। सो दैट प्रीटी मच कंक्लूड्स आवर रिव्यू। अगर आपको पसंद आया हो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आपको पसंद ना आया हो डिसलाइक का बटन दबाना है 2 मरतबा। एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज फील फ्री टू राइट डाउन बिलो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज। अब वाकई में अल्लाह हाफिज भाई। Sometimes the things don't work when you want them to.